team of the Enforcement Directorate was attacked during a raid in West Bengal's Sandesh Khali area. The incident was reported from North 24 Parganas district in Kolkata, where the team had gone to raid the location in connection with an alleged ration distribution scam of a TMC local leader. The team was attacked as it approached Trinamool leader Shah Jahan Sheikh's resident, who was later arrested in the case. Brian, back on the telecast with me. Brian, we're getting to know that the TMC leader against whom at his residence the raid that was conducted has now been arrested. Brian, can you hear me? Yes, Megha, am I audible? Can you please repeat? Yes, the question being that despite the attacks on the CRPF as well as the Enforcement Directorate officers, the arrest has been made. Yes, well, Megha, right now, yes, the latest that we're getting to know is that this very person has been arrested. Sheikh Shah Jahan has been arrested, who is the TMC leader, and not just now, he has been arrested, yes, but he has also been, he's also regarded as a don, and even he has several charges against him, murder charges against him, and even right now also when they were on their way to raid his very residence, all these, and there were many raids going on at around 18 places, including Sarberia also, which is in connection with the ration scam. The ED officials, the Jawans, the CRPS, and even the media people were, were surrounded by 200 villagers, and we were reportedly attacked. One person even had a head injury. Even reportedly they were even armed and had other weapons as well, and they began chasing him. Their vehicles were damaged. The media people were beaten up. But yes, he has been arrested now, and there has been a very swift action. And even Shubhendu Adhikari has written to the Home Minister urging the NIA to take over as soon as possible. And yes, BJP Chief Sukhantu Majumdar has also said that there is a complaint and corruption charges against all of them. And it is natural that the ED will take action. It is quite obvious. And the attack on ED in West Bengal's Sandesh Khali shows that Rohingya are doing this to, to malign the law and order in the state. Yes, but the latest is that this very leader who has several charges against him has been arrested. Megha. Okay, all right. Thank you, Brian, for giving us those details. There are more political reactions pouring in the story. Let's take a look. बंगाल पे ईडी की जो टीम की थी कविंदर जी, उस पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी की गई है, कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये तो हमें जानकारी है कि ये पूरी तरह से राशन घोटाले में ये लोग और भी ऐसे बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। जब ईडी इन पर रेड करने जाती है, जब उनको सबूत मिलते हैं, तो स्वाभाविक बात है पूरे देश में इस प्रकार की जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चल रही है, तो उसी के तहत ही कार्रवाई हुई। लेकिन साफ जाहिर होता है कि गुंडागर्दी का राज है, और ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, किस प्रकार से पुलिस पर और पत्रकारों पर पथराव करना, ये अपने आप में निंदाजनक है। और उनको ये भी समझना चाहिए कि जब आप सुरक्षा बलों पर पथराव करोगे, कुछ और करोगे, तो वो सहन होने वाला नहीं है। और सुरक्षा बल जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बंगाल में इस प्रकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर ये प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो गुंडा तत्व हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज पश्चिम बंगाल के लिए ब्लैक डे है। आज तृणमूल नेता शाहजहां, जिसके ऊपर बहुत सारा केसेस है, उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए ईडी ने अभियान चलाया था, ईडी सीबीआई ने। और जाने के टाइम में वहां पे पूरा जो शाहजहां का जो वाहिनी है, गुंडा वाहिनी है, रोहिंग्या वाहिनी है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो लोगों को वोट बैंक के तरफ यूज करने के लिए ममता बनर्जी उसको फेक वोटर आईडी कार्ड देके रखे हैं वोट बैंक के लिए, वो लोग पूरा अटैक किया पूरा ईडी सीबीआई अधिकारी के ऊपर। भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है, ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेश खाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था,
उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। हम लोग एक बात जरूर कहेंगे, ये प्रोवोकेशन का पॉलिटिक्स वो लोग बंद कीजिए और इलाका का जो सिटीजन्स है उसके तरफ हमारा जो मैसेज है कि आप लोग किसी तरह कोई प्रोवोकेशन में आप मत पा दीजिए। लोकतंत्र जो सिस्टम बार बार फेल हो रहा है, इसलिए ईडी का ऊपर हमला हो रहा है। वहाँ देश के खिलाफ जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी मजबूती हो रहा है। इतना बम बारूद पिस्तौल हर रोज मिल रहा है, लेकिन उनका ऊपर ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए वहाँ इमरजेंसी देकर वो गवर्नमेंट का हटा के वहाँ कानून का शासन लगाने सबसे पहले जरूरी है। इसलिए वो सब ठीक सुधार आ जाएगा। किसी को हिम्मत नहीं रहेगा जो ईडी के ऊपर हमला करे। इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी महामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है, और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। देखिए, संदेश खाली और पूरा बशीरहाट इलाका का डॉन है शाहजहां शेख और तृणमूल का लीडर भी है, संतरासवादी भी है, और इनके खिलाफ बहुत सारे मर्डर केस है, बहुत सारे गैर कानूनी केसेस है। तब भी पुलिस उनको कुछ नहीं करते, कारण वो तृणमूल का शरण में है, तृणमूल का लीडर है, उसी इलाका में तृणमूल को जिताते हैं। एक बड़ा कम्युनल लीडर भी वो है, इसीलिए कम्युनल अशांति फैलाने का काम भी वहीं पर करते हैं, तो उनका डर से सब भयभीत है। The officers of Central Investigating Agency surrounded by the central forces, they provoked the local people badly. That's why there was a counter reaction spontaneously. The real fact is the people of India, they are totally frustrated seeing this deep-rooted conspiracy engineered and monitored by Delhi on daily basis, and that too in case of Trinamool Congress so far in our state of West Bengal is concerned. People of Bengal, they are witnessing this big conspiracy almost on daily basis. On the contrary, the person who is posting all these stuffs in the social media, he is topping the list of corruption. पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में जो घटना घटी बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। और आज सिर्फ एक ईडी यानी एक स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर हमला नहीं हुआ, आज पश्चिम बंगाल में भारत के संविधान के ऊपर हमला हुआ है, भारत के कानून के ऊपर हमला हुआ है। टीएमसी के बड़े मंत्री, बड़े नेता पहले भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, जनता का पैसा हड़प लेते हैं, और जब उनके ऊपर जांच बैठती है, अपने बड़े मंत्री, बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप से बचाने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी के ऊपर हमला करवाती है। The ghastly incident reported from Sandesh Khadi in North 24 Parganas district is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.